Morning. So I would like to welcome Ms. Zoya Khan. She is the coordinator for the Greener School program, and she works with United Way Delhi. So I would like to request you to present and give us insights about the Greener School program. Sure, Lutna. Thank you. Yeah. Yeah. Good morning, everyone. Would you like to share your screen, Zoya? Yeah. Yeah, shared. Is it visible? Yes, it's visible. Thank you. Good morning, everyone. I hope you all are doing well. So, Green Year School program is the annual program which is open to all the schools across the India. Our aim for this program is to convert the existing schools into greener schools. So in IGBC program, the main initiative is to reduce the carbon footprint and educate the students on eco-friendly practices. We have the several objective of this program, mainly in which our main objective is to convert the existing school into greener building and to spread awareness about environmental education among the peer groups and to instill eco-sensitive behavior in the daily lifestyle of the children. So this is the overall main objective of the program, IGBC Green Year School. Our vision is to enable majority of the schools in India to convert into green school by 2025. This contest is being held since last 18 years with the support of Carrier in association with United Way Delhi. Who can apply for this, applicable for the school across the India? The main criteria, or like you can say, the main methodology to apply for this is to you have to form the team in your school of one teacher and three students. The standards can be 8 to 10. This is our Green Your School website. You can just click on this. You can just type in the Google Green Your School, and there you will see the ticker which is showing the registrations are open, and there you can go and register your school to get to participate in this contest. The theme of our program is to you have to submit seven sustainable idea and three well-being ideas. We have a methodology to to select the schools, which is on based on this methodology. We every year we select shortlist eight school which we support through grant to implement the green ideas in their school. So the methodology will be like in the month of June, we circulate the flyer or we uh, s- uh, open the registration at our website. The school has to go on our website and register themselves. And that once they register themselves, they have to submit a PPT, in which PPT they have to submit the 10 ideas in which seven are sustainable ideas and three are health and hygiene ideas. Once you submit, so then our team with IGBC and some of the external members, we evaluate those ideas in pre-jury. Once we evaluate or once we shortlist the ideas, after the pre-jury, we have a jury in which we select top eight schools to some to support their ideas to implement their green ideas in the building. Once we select the top eight schools, we call them in the award ceremony, which is held by IGBC Greener Schools. After selecting and converting, like having the award distribution, we disburse the grant to school to implement those ideas. This is our guidelines and methodology. Like from each school, one teacher and three students should be there in it as a team. They have to propose the ideas again, seven sustainable and three health ideas. The ideas should be compiled in a PPT format, which we share, or it is on our website also, the format of the PPT. So in the PPT format, you have to submit your proposal, basically your ideas which you would like to implement in your school. These ideas should benefit your school and it should have an approx budget you require to implement the ideas.
This is our evaluation criteria. Once you submit the ideas, so you should keep in mind that the idea should be practical in implementation. Like if you are submitting any idea, it should be practical that it can be implemented in your school. It should be innovative from the other schools. It should be it should benefit to you and the society, and it should have something based on the education and awareness so that the students who are participating can get some knowledge out of that. How much of the grant we disburse? To top three schools, we give 3 lakh amount to implement the ideas, and to top five, we give 2.25 lakh of the amount to implement the ideas. These are some of the snippet of the previous schools who have implemented the ideas in their schools. Vermicomposting, vegetable garden, rainwater harvesting, solar panel, paper recycling unit. Benefit of the green school. If you will convert your existing school into the greener school, what kind of a benefit you can have is in front of you, like it will have a reduced environmental impact, the improved health of the staff and student, lower operational cost of schools, and enhanced learning environment. Many more. These are few of the recommended ideas or the themes on which you can submit the ideas, like energy efficient, like solar panel, water conservation, rainwater harvesting, sprinkler system, waste reduction, green landscaping, sustainable transportation, curriculum integration of environmental education. So these are few of the themes on which you can submit your idea. These are recommendations. You can be as innovative as you can. This is all. If any of you have any question or query, you can ask to me or Lubna. Anyone have any query? Any questions regarding the registration process or participation process? Okay, then thank you, Zoya. Thank you so much. We Thank you. would next go to Mr. Vimal. He is from Biliamba School. They are the winners of the 2022 competition, senior school competition. Mr. Vimal, Vimal ji, they were having some technical issues. Let me just check. Vimal ji, can you hear us? He is having some technical issues. We'll just give him 2 minutes.
I think we can just call him once. Let me call Lubna. I am talking to him. He is having Okay. some technical issues. I'm on the Okay. phone with him. Yeah. Okay. Meanwhile, if anybody has any query regarding the registration process or Green Year School program, so you can raise your hand or have the query. विमल जी आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay, I will just share this PPT. Are you all able to see my screen? Yes. Lubna, your PPT is not visible. Yeah, it is visible now. He is having some trouble with this mic, but he's joining from another device. Let's just give them some time. विमल जी. हाँ मैडम. यस यस ओके, आप शेयर करेंगे, मैं ऑन रखूं ये पीपीटी? हाँ आप मैं ऑन शेयर रखो. करता हूँ. ओके ठीक है, मैं आई स्टॉप शेयर. हाँ ओके मैडम प्लीज आप शेयर. शेयर कीजिए. मैं ही शेयर करूं? ओके हाँ. ठीक है. ओके, नजर आ रहा है आपको ये? विमल ओके जी यू मैम. कैन प्लीज स्टार्ट. हाँ जी, आप हाँ, स्टार्ट कीजिए. थोड़ा टेक्निकली इश्यू के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं. नहीं कोई बात नहीं, आप प्लीज यू कैन प्रोसीड. बेलियाम्बा प्राइमरी स्कूल आहवा डांग डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ग्रीन योर स्कूल कंपटीशन में 2022 में हमारा स्कूल है वो विनर रहा था. ये हमारे स्कूल का लोकेशन है. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैडम. जी. ये हमारे स्कूल का एनरोलमेंट है. बच्चे अभी तो उस वक्त 2022 में 300 बच्चे थे. अभी हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं. और जो हमारा स्कूल है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर, मतलब बॉर्डर विलेज है. गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर का गांव है ये, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. लेकिन स्कूल में हमने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आज हमारा जो स्कूल है वो पूरे गुजरात के टॉप 10 स्कूल्स में आता है. नेक्स्ट मैडम. ये कुछ अचीवमेंट है हमारे स्कूल का. जो एटमॉस्फेयर है उसका, ये ग्राउंड्स है, और जो वेस्ट चीजें हैं जैसे कि टायर है, लकड़ियां है, उसकी मदद से हमने हमारे स्कूल का जो पर्यावरण है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया है, ग्रीन बनाने का प्रयास किया है. नेक्स्ट मैडम. ये हमारे स्कूल की कुछ अचीवमेंट है. जो कुछ गतिविधियां हैं जो हमारे स्कूल में रूटीन में सब होती है. तो उसमें कुछ फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं हमने, जैसे कि ये आम का पेड़ है, कुछ उसके बाद कटहल है. और किचन गार्डन की एक्टिविटियां होती है हमारे स्कूल में. वो जो बच्चियां दिख रही है वो किचन गार्डन में से सब्जियां लेके हमारे स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसमें हम उसका यूज करते हैं.
और साथ में यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो ड्रिप इरिगेशन है, ये सब एक्टिविटियां जो है हमारी वो हम स्कूल में करते हैं। नेक्स्ट मैडम। ये कुछ अचीवमेंट है हमारी, इन सब गतिविधियों के कारण हमको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से भी मिला हुआ है। और ये सब ग्रीन स्कूल की गतिविधियों के अलावा हमारा स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स है, ये सभी गतिविधियों में बहुत आगे है, तो उसका कुछ मेडल्स वगैरह है हमारे बच्चों के। और मैं प्रिंसिपल के तहत मुझे गुजरात गवर्नमेंट की ओर से राज्यपाल अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट मैडम। अभी यहाँ से जो 10 आइडियाज का बात हुआ, उसकी जो 10 आइडियाज है वो हमारे स्कूल में हमारे बच्चों ने जो 10 आइडियाज आईजीबीसी को दिए थे, उसमें से ये पहला आइडिया है, जिसमें हमारे स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें गार्डनिंग ज्यादा है। तो गार्डन में फूल पौधे बहुत है, फूल ज्यादा होते हैं, उसके कारण कुछ मधुमक्खियां हमारे स्कूल में आती थी। उसको देख के हमारे बच्चों ने ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि सर हम एपीकल्चर का बॉक्स हमारे स्कूल में लगाए, तो उससे हम ये हनी का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमने फॉरेस्ट के लोगों से ये जब बात किया, तो उन्होंने हमारे स्कूल में 10 पेटियां लगाई है हनी बीट की, जिससे अब हमारे स्कूल में बहुत सारी मधुमक्खियां आती है, और वो 10 बॉक्सेस से उसमें से हम अभी हनी पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट मैडम। और कोरोना की महामारी उस टाइम पे चल रही थी, तो उस समय हमने ये हैंड वॉश का बहुत यूज होता था, सैनिटाइजर है ये सब चीजों का। तो उस टाइम पे हमारे बच्चों ने ये एक दूसरा आइडिया दिया था कि सर नीम के पत्ते और ग्लिसरीन की मदद से हम नीम सोप बनाएंगे, और इसमें एलोवेरा एलोवेरा का भी यूज किया हुआ है। तो उससे सोप बनाते थे, और उसके बाद वही सोप में से हम हैंड वॉश उसको मिक्सर में मिक्स करके फिर हैंड वॉश की बोतलें तैयार करते थे। उसके फोटोज है वो मैं ये प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद आप सबसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट मैडम। और ये हमारा प्ले ग्राउंड है जहाँ पे हमारे बच्चे खो खो खेलते हैं। और खो खो में हम लास्ट 5 ईयर से गुजरात स्टेट में स्टेट लेवल की टूर्नामेंट में टॉप किया है हमने। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं ये खेल में। तो उसका जो प्ले ग्राउंड है उसमें मिट्टी डाला हुआ है, तो उस मिट्टी को कवर करने के लिए हम कभी कभी डाई लगाते हैं बच्चे, या गिर जाते हैं तो कहीं पे खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है। तो उसको कवर करने के लिए हमने गाय का जो गोबर होता है वो गांव में से गांव के लोग और हम सब मिलके लाते हैं, और उससे पूरा प्लेग्राउंड को कवर कर देते हैं। उससे मैदान थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके कारण जब कोई बच्चा गिर जाता है या कहीं पे डाइव लगाता है, तो जो कंकर के कारण जो चोट आती थी वो अभी नहीं आती है। गोबर के कारण मैदान थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। ये आइडिया था हमारा एक। नेक्स्ट मैडम। उसके बाद ये जो हमारा जो स्कूल का एरिया है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें बहुत सारा गार्डनिंग है, किचन गार्डन है, बड़े पेड़ है। तो ये सबको पानी पिलाना पड़ता है, तो पानी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर था। तो इलेक्ट्रिक मोटर से हमारे स्कूल का जो बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा था। मतलब 2 महीने में 30,000 35,000 का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का आता था। तो उसके कारण ये हमारा एक आइडिया था कि अगर हम ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह पे अगर हम सोलर पैनल वाला मोटर लगा दें, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम हो जाएगा। और इसी कारण हमारा ये आइडिया था। ये आइडिया हमने आईजीबीसी को सबमिट किया था, और अभी सोलर पैनल लग भी गया है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 50% कम हो गया है अभी। नेक्स्ट मैडम। और हमारे गार्डन में थोड़ा लॉन गार्डन भी है, तो लॉन गार्डन के लिए हमने ये स्प्रिंकलिंग का यूज किया है, जिससे पानी का बहुत बचत होता है, और उसके साथ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसमें स्प्रिंकलिंग मोटर में चालू हो जाता है, तो हमारे लॉन गार्डन का जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट मैडम।
और ये वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट किया हुआ है हमने। इसमें दो जो स्लाइड है, उसमें जो पहला स्लाइड है वो हमारा पहले से चालू ही था हमारे स्कूल में। ये जो ऊपर वाला है उसमें क्या है कि हमारे स्कूल में जितने बेसिंग है, हैंड पंप है, उसका जो यूज किया हुआ जो पानी है, मतलब उसको हमने पाइपलाइन करके एक छोटी टंकी 500 लीटर की टंकी में उतारा है। उस टंकी में रेती है, कच्ची है, ईंट है, उसका सब रोडे सब मिक्स करके रखा है अंदर। तो उसमें पानी जाता है और फिर उसके नीचे से फिल्टर होके जो नीचे बड़ा टंकी दिख रहा है उस टंकी में जाता है। उस टंकी में हमने एक मोटर डाला हुआ है। फिर वो जब टंकी भर जाता है तो ये जो पानी है वो थोड़ा फिल्टर होके हम हमारे जो गार्डन है वो गार्डन में उसका यूज करते हैं। वैसे ये जो हमारा एरिया है वो बहुत हाइट वाला एरिया है, मतलब जब बारिश होती है तो बारिश पूरा बह जाता है, उसका स्टोरेज का कोई इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो पानी का बहुत दिक्कत होता है हमको। तो हमने इस तरह से हमारे पूरे कैंपस का जितना भी बेसिंग है जहाँ पानी यूज होता है वो पानी को पाइपलाइन की मदद से इस टंकी में स्टोरेज करके उसको फिल्टर करके गार्डन में लाने का प्रयास किया है। और जो स्प्रिंकलिंग जो हमने अगले ये मैं देखा पीपीटी में अगले स्लाइड में, उस स्प्रिंकलिंग में भी हम यही पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैडम। और किचन गार्डन में हम जो सब्जियां बनाते हैं, हमारे गुजरात में ये जो हमारा जो जिला है डांग जिला, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने प्राकृतिक जिला घोषित किया हुआ है। मतलब इस जिले में कहीं भी रासायनिक खाद का उपयोग खेत में कोई नहीं करता, कोई खेडूत भी नहीं करता, और कहीं पे मिलता भी नहीं। तो ये तो अभी चालू है हमारे यहाँ पे। पर हमने बहुत पहले से ये जो खाद है उसका हम यूज नहीं करते थे पहले से ही। हमारे स्कूल में कैंपस में जितने भी औषधीय वनस्पति है या सब्जियां है या गार्डन है, सब में हम अ, अपना बनाया हुआ, मतलब गोबर में से बनाया हुआ खाद ही उसमें इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ साथ जो सब्जियां बनाते हैं हम सब्जियां, उसमें कोई जंतुनाशक कीटनाशक दवाइयां भी हम उसमें यूज नहीं करते। तो उसकी जगह पे हम अर्क अर्क जो होता है उसके पत्ते को उबालते हैं, और पूरा उबल जाने के बाद उस पानी को हम ठंडा करते हैं और उसमें बटर मिला के उसका ये बनाते हैं और उसका यूज करते हैं, ताकि कीटक भी मर जाते हैं। और हमारे लिए ये बहुत नुकसानकारक भी नहीं है। जैसे कि ये कीटनाशक रासायनिक दवाएं जितनी हमको नुकसान करती है, इतना ये नुकसान नहीं करता। ये हमारा एक आइडिया था। नेक्स्ट मैडम। और ये बर्ड हाउस है हमारा, जो बिल्डिंग है स्कूल का पूरा, उसमें हमने ये छोटे छोटे बर्ड चिड़िया के लिए बनाए हुए हैं, जिसको हमारे यहाँ गुजरात में बांस बोलते हैं। वो बांस की पट्टी में से इसको बनाया हुआ है। और हमारे पूरे स्कूल में, स्कूल बिल्डिंग का जो कैंपस है, उस कैंपस में पूरे एंगल पे उसको लगा दिया है, जिसमें चिड़िया आती है, चिड़िया रहती है, अपना घोंसला बनाती है। और बच्चों को भी हम उसके बर्ड मतलब बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट करते हैं। कोई हमारे स्कूल का विजिट करने के लिए कोई आता है तो उसको भी विजिट के स्वागत जब हम उसका करते हैं, तब ये बर्ड हाउस देके हम उसका स्वागत करते हैं, ताकि ये हमारा बर्ड हाउस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। हमारे गांव में भी हमने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है। हर घर में एक एक बर्ड हाउस दिया हुआ है। और जो बनाने वाले कारीगर है उससे भी बोला है, आपसे भी कोई अगर ये बनवाता है तो आप उसको बना दीजिए। ऐसा करके ये बर्ड हाउस लगाए हैं। अभी हमारे स्कूल में 500 से 700 चिड़िया आराम से रहती है। पूरे दिन चिड़ियों का शोर हमको सुनाई देता है। नेक्स्ट मैडम। ये गेरू और चूना लगाया हुआ है हमारे बड़े बड़े पेड़ों में। हम पूरे साल में 4 से 5 बार हमारे पूरे स्कूल के जो पेड़ है, बड़े पेड़, उसको ये इससे कवर करते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी दीमक जो लग जाता है बड़े पेड़ पे, वो गेरू और चूना करने से नहीं आता। तो जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगा हम उसको लगा देंगे। फिर नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल,
ऐसा करके 3 से 4 बार हमारे जो पेड़ है, जितने भी पेड़, उसको हम ये गेरू और चूने से कवर करते हैं। नेक्स्ट में। और ये है हॉट बॉक्स, ये भी बांस में से बनाया हुआ है। 2 बॉक्स बनाए हुए हैं हमने, उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रख दिया है और उसको प्लास्टिक से कवर करके फिर उसके अंदर लकड़ी का जो बेर होता है वो भर दिया है। तो वो ये अभी बॉक्स बन गया, उसमें हवा नहीं जा सकती। तो हमारे यहाँ ऐसे तो गुजरात गवर्नमेंट का स्कूल है हमारा, तो गवर्नमेंट का टाइम हमारा जो है वो 10 से 5 है, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो और स्कूलों से थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट कि हम सुबह 8 बजे से हमारा स्कूल चालू कर देते हैं। हम सब टीचर यहीं पर रहते हैं, तो 8 बजे से जब हमारा स्कूल चालू हो जाता है तो बच्चे 8 बजे स्कूल में आ जाते हैं। तो घर से जो बच्चे आते हैं वो टिफिन लेके आते हैं। जब उसको 10 बजे लंच का टाइम होता है तो 10 बजे खाते हैं बच्चे, तो वो लंच बॉक्स इस हॉट बॉक्स में रख देते हैं, जिसकी कारण उसका जो खाना है वो गर्म ही रहता है। इसलिए हमारा ये आइडिया था। नेक्स्ट। और हमारे जो 10 आइडियाज जो है, वो 10 आइडियाज हमारे स्कूल का पूरा नक्शा है, उसमें लगाए हुए हैं। ये 10 आइडियाज इस जगह पे अभी कार्यरत है। नेक्स्ट में। और ये 10 आइडियाज का जो खर्चा आता था, वो जो आईजीबीसी में हमने एक किया था, वो आइडिया के खर्चे का पूरा विवरण है उसमें। नेक्स्ट में। हाँ मैडम, अभी थोड़े फोटोज है जो हमारी गतिविधियां, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ तो मैं मैडम वो यहीं से करता हूँ, मैं अपने कैमरे से। ओके, मैं स्टॉप शेयर। हाँ। आप कीजिए। ये मैडम अभी हमारा स्कूल का कैंपस ऐसा है। जी। और गार्डनिंग का है, ये रोज गार्डन बनाया हुआ है अभी इस हालत में है। और ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी है, अभी 26 जून को हमारे यहाँ पे आए थे। और उन्होंने जो हमारा जो पूरा किचन गार्डन है, उसमें हम कैसे किचन गार्डनिंग का काम करते हैं और मिड डे मील में कैसे हम उसका यूज करते हैं, वो पूरा हमारे सीएम साहब ने आके देखा हमारा किचन गार्डन, और उसका पूरा काम कैसे होता है वो मैं उस टाइम पे हमारे सीएम साहब को हम समझा रहे थे। और जो हैंड वॉश का आइडिया का है, वो फोटोग्राफ्स हमारे बच्चे जब करते हैं तब ये फोटोग्राफ्स है। और ये गार्डनिंग है, ये वेस्ट जो चीजें हैं उससे किया हुआ गार्डनिंग है। ऐसा हमारा जो ट्रिंकलिंग का जो आइडिया था, वो ऐसे ट्रिंकलिंग लगाया हुआ है अभी। और ये हॉट बॉक्स का आइडिया है, बच्चे इसे हमारे हॉट बॉक्स में अपना लंच बॉक्स रखते हैं। ये रोज गार्डन है, ये हमारा ऑपोजिट स्कूल के सामने का दूसरा गार्डन है। और जो ड्रिप इरिगेशन है, वो ड्रिप इरिगेशन में हमने ऐसे बोतल से भी अपने जो सब्जियां है, बैंगन है, टमाटर है, उसमें एक एक बच्चे को हम एक एक बोतल का जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो ऐसे बोतल लगा के भी हमने ड्रिप इरिगेशन करने का प्रयास किया है। ये सीएम साहब सब देख रहे थे। और ये किचन गार्डन में से जो सब्जियां निकलती है, वो बच्चे इसे कर लेके उसको मिड डे मील में प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन के आइडियाज है। ये अभी जैसे सीजन में जो जो सब्जियां होती है उसको हम करते हैं। वो अभी ये मानसून का है, ये विंटर का है, समर का है। इसे जैसे जैसे जो जो सब्जियां जिस ऋतु में होती है, उसको ऐसे उगाने का प्रयास करते हैं। और ये सब सब्जियां
प्राकृतिक सब्जियां यानी कि सजीव खेती हम गुजराती में बोलते हैं उसको, तो उसमें नहीं कोई खाद होता है, नहीं कोई जंतुनाशक दवाएं होती है, एकदम प्योर सब्जियां ये हम हमारे मिड डे मील में यूज करते हैं। थैंक यू मैडम। बहुत ही खूबसूरत स्कूल है आपका, और आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किए जो आइडियाज, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच विमल जी। थैंक यू If मैडम। there are any questions regarding the हाँ, Green Year School program, or if you all have any questions for Mr. Vimal. Zoya, would you like to add something about this school? No, I have visited this school personally, and they have implemented every ideas, and the building is very eco-friendly, and they are using everything eco-friendly in the school. It's a great example for everybody they are joining. If they can also convert their school something like that. Yeah, looking at the Thank you, ideas, these are Vimalji. such these are such humble ideas, and from small implementation, small ideas, they have involved the students, right from the root level of all the ideas. They have actually given the responsibility of bottles, to fill the bottles for the drip irrigation system. So this is really encouraging and really inspiring for all the schools that will be participating in this Green Your School program. विमल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप हैं हाँ मैडम। हमारे साथ? हाँ जी, एक सवाल मेरा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था ग्रीन योर स्कूल में, जो आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपके बहुत स्कूल में क्या चेंजेस आए इसकी वजह से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैडम। हम जैसे कि हमारा जो आइडिया था वाटर मैनेजमेंट का, वो तो हमने बहुत छोटे से तौर पे उसका चालू किया था, लेकिन जब हमने जो ये हमारे जो 10 आइडियाज दिए थे, वो 10 आइडियाज का जो बजट था वो आईजीबीसी ने जब हमको प्रोवाइड किया तो हमको बहुत सारा फायदा हुआ, और उसकी वजह से हम जितना काम करना चाहते थे उसमें बहुत सारा इजाफा कर सके, और जितने आइडिया है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से हमारे स्कूल में मैनेज करने का ट्राई किया है। और ग्रीन कंपटीशन में जो हमको पैसे मिले थे उससे हमने हमारे स्कूल को बहुत डेवलप किया है मैडम। और अभी जो मेरे स्क्रीन पे जो अभी फोटो है उसमें मैडम एक चीज अभी हमने दूसरा किया है, पूरे कैंपस को सोलर लाइट से सज्ज कर दिया, मतलब सोलर लाइट पूरे कैंपस में लगा दी। एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट। आईजीबीसी का तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत करने के लिए हमें जो फंड चाहिए था वो हमको डोनेट किया, और बहुत यूजफुल रहा हमारा वो ट्रिप। और जब हम यहाँ से बच्चों को लेके मैं जब हैदराबाद गया तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा कि कभी प्लेन देखा नहीं था, उस प्लेन में बैठ के बच्चे वहां पे गए, इतना सारा अच्छा अनुभव लिया, बच्चे भी बहुत खुश थे। और पर्सनली मैं भी पहली बार ऐसे प्लेन में बैठा था, उससे पहला मुझे भी प्लेन का कोई अनुभव नहीं था। तो आईजीबीसी को बहुत थैंक्स, मेरी मेरी ओर से और मेरे स्कूल की ओर से बहुत थैंक्स मैम। और अगली बार शायद हमको पार्टिसिपेट करने का अभी चांस मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे फिर से आईजीबीसी के साथ जुड़ने। जरूर जरूर विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। आपके बहुत ही खूबसूरत स्कूल को हमें देखने का मौका मिला, और हम फिर से आपको बुलाएंगे और मिलेंगे जरूर आपके स्कूल के बच्चों से भी। जोया, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? No, nothing for now. Okay, if there are any inquiries or any questions, you all can ask now, or you all can get in touch with us. Our email IDs are there on the poster. Please do get in touch with us. And I would like to conclude the webinar as of now. And we'll meet up in the next maybe 15 days or a month's time. Okay, thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.